Good morning, children. Let's continue with lesson number 1, arrival of Europeans in India. Okay. In the last session, we studied about Christopher Columbus, an Italian explorer, and Vasco da Gama, a native of Portugal. Both are the adventurous sailors. Now, both these sailors dared to find out the sea route to India. Christopher Columbus was failed to find out the sea route to India, but Vasco da Gama discovered the sea route to India. Okay, Vasco da Gama was a native of Portugal. Now today we will discuss about the end of Portuguese rule. How the Portuguese rule was ended. The Dutch are from Netherlands. The natives of Netherlands are called Dutches. Now British interest in India and the French. All these are belong to European countries. Okay. Now let's start with end of Portuguese rule. End of Portuguese rule. Now in the beginning of the 17th century, the Portuguese expanded their trade to Bengal. In the beginning of 17th century की शुरुआत में the Portuguese expanded their trade to Bengal. जो पोर्टुगीज थे उन्होंने अपना व्यापार, ट्रेड मीन्स अपना बिजनेस बंगाल तक एक्सपांडेड किया, मीन्स फैलाया, बंगाल तक उन्होंने फैलाया अपना जो बिजनेस है वो. At this time, the Mughal Emperor Shah Jahan, who is the Mughal Emperor Shah Jahan? Okay. At this time, the Mughal Emperor Shah Jahan ruled India from Delhi. In the 17th century, the Mughal Emperor Shah Jahan ruled India from Delhi. The Subedar of Bengal complained to Shah Jahan about the behavior of the Portuguese. जो बंगाल का जो सूबेदार था उन्होंने शाहजहाँ को कंप्लेन किया किसके बारे में, अबाउट द बिहेवियर ऑफ द पोर्टुगीज़ के जो बिहेवियर था उनका जो बर्ताव था उनके बारे में. जो सूबेदार था बंगाल का उसने शाहजहाँ को कंप्लेन किया. Thus the fort of Hooghly was demolished and the ships were burnt as per the order of the emperor. इस कंप्लेंट करने के बाद एम्पेरर के ऑर्डर से जो शाहजहाँ थे उन्होंने ऑर्डर दिया. द फोर्ट ऑफ हुगली वॉज डेमोलिज्ड मीन्स डिस्ट्रॉय. जो हुगली का जो फोर्ट था वो उन्होंने डेमोलिश कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया है. फोर्ट मीन्स अ बिल्डिंग और एन एरिया फ्रॉम वेयर इट इज़ इम्पॉसिबल टू एंटर और लीव इट. You can see here the picture of a fort from where it is impossible to enter or come outside, right? Which has high walls. Now, thus the fort of Hooghly was demolished, destroyed, and the ships were burnt. All the ships were burnt. जो ships थे उनके वो जला दिए. In this way, the Portuguese rule came to end with the exception of the terrorize of दीव, दमन and गोवा. और इस तरह जो पोर्टुगीज़ रूल था उसका अंत आया और जो पोर्टुगल थे उनका रूल सिर्फ दीव, दमन और गोवा तक ही सीमित रहा. वो लोग दीव, दमन और गोवा में ही वो लोग अपना रूलिंग, अपनी सत्ता चला सकते थे. Now, how was Portuguese rule ended? Because of the behavior of Portuguese in the order of Emperor Shah Jahan, all the fort of Hooghly was demolished and all the ships were burnt. So, in this way, the Portuguese rule came to an end. Okay. Now, next point, the Dutch. After 100 years of the arrival of Portuguese, at the end of the 16th century, the Dutch of Holland
Holland is now known as Netherlands, came to India for trading. Now, the natives of Netherlands or Holland are called Dutch. Now, after 100 years of the arrival of Portuguese, जब पोर्टुगीज़ जब इंडिया में आए उनसे उसके बाद के जो 100 वर्ष थे, लगभग एट द एंड ऑफ 16th सेंचुरी, द डचीज ऑफ हॉलैंड केम टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग. तो उस समय डचीज इंडिया में आए ट्रेडिंग के लिए. इनिशियली दे एस्टैब्लिश्ड फोर्ट्स एट पुलिकट एंड मद्रास विच इज़ प्रेजेंटली कॉल्ड चेन्नई. और इंडिया में ट्रेडिंग के लिए, व्यापार के लिए आने के बाद उन्होंने क्या किया, दे एस्टैब्लिश्ड फोर्ट्स एट पुलिकट एंड मद्रास. उन्होंने मद्रास और पुलिकट में फोर्ट्स बनाए. They also established a trading center at Agra in the year 1663. उन्होंने 1663 में आगरा में भी एक ट्रेडिंग सेंटर बनाया, व्यापार का एक सेंटर बनाया. Meanwhile, the British also arrived in India. Or that time, when the Dutchies came to India for trading, British also arrived in India. Britishers भी आए इंडिया में. The Dutch could not withstand the competition against the British. और जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तब उनके सामने कंपटीशन, जो डच थे वो उनके सामने, उनके अगेंस्ट जो कंपटीशन में वो लोग खड़े नहीं रह सके. ब्रिटिशर्स के सामने वो लोग नहीं टिक सके. द डच कुड नॉट विथस्टैंड द कंपटीशन अगेंस्ट द ब्रिटिश. नाउ ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडिया. During the reign of Queen Elizabeth of England in the year 1600 CE, the British established the East India Company. जब क्वीन इंग्लैंड में in the year 1600 CE, जब इंग्लैंड में क्वीन एलिजाबेथ की सत्ता चल रही थी, उनका राज चल रहा था, तब द ब्रिटिश एस्टैब्लिश द ईस्ट इंडिया कंपनी. तभी जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया. दिस कंपनी बिलोंग टू मर्चेंट्स हु वांटेड टू इंक्रीज देयर वेल्थ बाय अंडरटेकिंग ट्रेड विथ इंडिया. और उस कंपनी में ऐसे मर्चेंट्स थे, दिस कंपनी बिलोंग टू मर्चेंट, उस कंपनी में ऐसे मर्चेंट्स थे हु वांटेड टू इंक्रीज देयर वेल्थ बाय अंडरटेकिंग ट्रेड विथ इंडिया. वो मर्चेंट्स इंडिया के साथ ट्रेडिंग करके, इंडिया के साथ व्यापार करके उनकी जो समृद्धि बढ़ाना चाहते थे. दे वांटेड टू इंक्रीज देयर वेल्थ. उनके जो मर्चेंट थे वो उनकी समृद्धि बढ़ाना चाहते थे इंडिया के साथ ट्रेडिंग करके, व्यापार करके. The first British ship arrived in India at the port of Surat in the year 1608 CE. जो फर्स्ट ब्रिटिश शिप जो कि इंडिया में आया वो एट द पोर्ट ऑफ सूरत के पोर्ट पर आया और इन द ईयर 1608 CE. Now Captain W. Hawkins, the captain of the ship, Hawkins is the captain of the ship, was the first British to set foot in India. वो फर्स्ट ब्रिटिशर था कि जो पहले इंडिया में आया. He met जहांगीर but did not get his permission to trade. वो जहांगीर से तो मिला बट उसे ट्रेड के लिए परमिशन नहीं मिली, व्यापार के लिए उसे परमिशन मिली नहीं. ब्रिटिशर्स को व्यापार के लिए जहांगीर से परमिशन नहीं मिली. सर थॉमस राव अराइव्ड इन इंडिया हु अक्वायर्ड द परमिशन टू एस्टैब्लिश अ ट्रेडिंग सेंटर इन सूरत. और उसके बाद कौन आए? सर थॉमस रॉ. वो इंडिया में आए. हु अक्वायर्ड द परमिशन टू एस्टैब्लिश अ ट्रेडिंग सेंटर इन सूरत. और उन्होंने फिर ट्रेडिंग सेंटर एस्टैब्लिश करने के लिए परमिशन ले ली. लेटर दिल्ली वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ शाहजहां. और उसके बाद जो दिल्ली की सत्ता थी वो शाहजहां के हाथों में थी. शाहजहां गेव परमिशन टू द ब्रिटिश टू कैरी आउट ट्रेड इन बंगाल. और फिर शाहजहां ने ब्रिटिश को बंगाल में ट्रेडिंग के लिए, व्यापार करने के लिए छूट दी. नेक्स्ट इज द फ्रेंच.
The French established the French East India Company in the year 1664 CE. फ्रेंच जो फ्रेंच थे उन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, वो भी ईयर 1664 CE में. They established factories in Surat, Machlipatanam and Puducherry, which is also called Pondicherry, right? And the head of the French company was Joseph. The head of the French company was Joseph Francois Dupleix, who had the desire to expand the European rule in India. The head of French company Joseph Francois Dupleix डिज़ायर टू एक्सपांड द यूरोपियन रूल इन इंडिया. वो इंडिया में यूरोपियन रूल एक्सपांड करना चाहते थे, यूरोपियन रूल लाना चाहते थे, यूरोपियन सत्ता लाना चाहते थे. दस द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश स्टूड इन कॉम्पिटिशन अगेंस्ट ईच अदर टू बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट यूरोपियन कंपनी. और फिर जो फ्रेंच और ब्रिटिश है वो एक दूसरे के अगेंस्ट में उनके बीच कंपटीशन चल रही थी टू बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट यूरोपियन कंपनी. कौन सी, फ्रेंच कंपनी या ब्रिटिश कंपनी, कौन सी कंपनी स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसके लिए उनके बीच में कंपटीशन चल रहा था. There were innumerable disputes and battles and finally the British emerged as the winners. उन लोगों के दोनों के बीच में, फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में, there were innumerable disputes, many disputes and battles occurred. And finally the British emerged as the winner. और finally winner कौन हुए? British. However, the French retained their control over the trading centers of Puducherry, Mahe and Chandranagar. और फिर फ्रेंच लोगों के पास ट्रेडिंग सेंटर्स, पुडुचेरी, माहे और चंद्रनगर के ट्रेडिंग सेंटर्स उनके पास रहे. द ब्रिटिश ट्रेड इन बंगाल. द ब्रिटिश फर्स्ट स्टार्टेड द ट्रेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली. After when the British first started the trade on the bank of river Hooghly and established forts in the year 1651 CE. और फिर उन्होंने 1651 में ट्रेडिंग स्टार्ट करने के बाद फोर्ट्स बनाए. The forts were garrisoned for their protection of the factory and got the permission from the Mughal Emperor Aurangzeb to trade without paying taxes against an annual payment. The forts were garrisoned. Garrison means to secure, to protect. The forts were garrisoned for their protection of the factory and got the permission from Mughal Emperor Aurangzeb to trade without paying taxes against the annual payment. उन्होंने क्या किया? तो अपने रक्षण के लिए उन्होंने सैनिक रखे, प्रोटेक्शन किया उन्होंने अपना. और फिर जो मुग़ल बादशाह थे, मुग़ल एम्परर थे औरंगज़ेब, उनसे उन्होंने एनुअल पेमेंट मीन्स जो वार्षिक इनकम होती है उसके बदले में विदाउट पेइंग टैक्स पे किए बिना ही ट्रेडिंग के लिए उन्होंने परमिशन ले ली. पहले क्या होता था कि जब भी वो ट्रेडिंग करते तो उन्हें टैक्स पे करना पड़ता था, पर इस बार ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि मुग़ल एम्परर से उन्होंने कोई भी परवानगी नहीं ली, परमिशन नहीं ली और टैक्स दिए बिना ही उन्होंने ट्रेडिंग करने के लिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो he got the permission from Mughal Emperor Aurangzeb to trade without paying taxes against an annual payment. उन्होंने एक वार्षिक जो पेमेंट है वो फिक्स कर दिया कि वार्षिक उन्हें इतनी जो रकम है कि वो दे देनी है और टैक्स पे नहीं करना है. इट मीन्स उन्होंने मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब से जो वार्षिक पेमेंट के बदले में विदाउट टैक्स पे किए बिना ही उन्होंने ट्रेडिंग करने के लिए परमिशन ले ली. तो इस तरह ब्रिटिशर्स ने हुगली नदी के किनारे
अपने व्यापार की शुरुआत की, अपने फोर्ट एस्टैब्लिश किए और अपने रक्षण के लिए उन्होंने सैनिक रखे और मुग़ल बादशाह से उन्होंने ट्रेडिंग के लिए विदाउट टैक्स उन्होंने परमिशन ले ली और एक एनुअल पेमेंट उन्होंने फिक्स कर दिया। ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू विद दिस लेसन इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।